Hello students, this is the second video lecture of chapter number 14, Motion and Time, class 7th Science. Since this is the second video lecture, we would be revising, take a few, recapitulations on what we have discussed in first video lecture. Okay, so in case if I talk about first video lecture, the main concepts which we focused on was regarding measurements. Okay, was regarding units. Okay, if I talk about what do you understand by standard unit, okay, and to standard units, which system follows standard units, or which system is recommending to use that particular standard unit of physical quantities. So basically, if I start from starting, we started understanding about quantities, about measurement. In case if I talk about physical quantities, the quantities which can be measured are called physical quantities. Something that can be measured, okay, with the help of any other, you can take any instrument or equipment. Using that, you can measure the unknown quantity. The thing is, the unit of both the things would be same, or the quantity which you are measuring should be same, or should be of same kind. In case if I am asking you to measure the length of wire, then instead of using a weighing scale, you would be obviously using a scale. If I ask you to measure the length of this marker, so for measuring the length you would be requiring a basic equipment like a scale, and not the weighing scale. Okay, that weighing scale जिसमें हम खड़े होके अपना वजन चेक करते हैं, और there are varieties of weighing scales available in the market these days. Okay, be it a digital scale or be it a a weighing balance वाला scale जो सब्जी वाला लेके आता है, या तो वो digital वाला, ठीक है, जिसपे हम सिर्फ अपना मतलब अपना in the sense the वजन which we place, okay, either in the form of fruits, vegetables or any other thing. Even if you have observed the digital weighing scales in the shops where gold in the form of jewelry is being sold. Okay, if we take that also, there also they use weighing scale, and according to grams the price is decided, obviously. So there are different kinds of weighing scales, but for measuring the length, which is another quantity, and for measuring the weight, which is other quantity, both these quantities can be measured, are referred as physical quantities. The thing I want to mention here is that in 1960, yes, you have to remember, 1916, there was a general conference of weights and measures, and they decided, they recommended an SI system. This SI system is nothing but Système International des Units, which is the full form of SI in French. Okay, so it is an international system, wherein all over the world a common unit would be used by everyone. Okay, this is something which you can rely on. Okay, whether depending on the footstep, handspan, and that all. Okay, then we discussed about what? We discussed about, after discussing physical quantities, what is measurement, we discussed about 3 different systems apart from SI system. Okay, that is FPS, CGS, MKS. Details regarding which I have already given in video lecture 1. Okay, then we talked about, basically measurement of time. Okay, in case if I talk about measurement of time, what do you understand? By, for measuring time, we have to consider something that is, repeating again and again at regular interval of time. So at regular interval, what all things occur is nothing but can be used to measure time. Okay, and regarding this, we discussed how earlier people used to measure time. People used to make assumption that whether it is afternoon, morning, evening, they divided these things. They divided which time is going on that particular day using sundials. But the major disadvantage of sundial was it cannot be used after sunset. Okay, then Romans introduced what? Sun clock. Okay, so that principles you have to remember. That if I talk about principle of sundial, so it would be on the basis of position of the sun. Okay, that position, as the position of the sun changes, the position of the shadow that is cast by a particular object,
उसका जो शेडो होगा, उसका जो लेंथ होगा, दैट वुड बी चेंजिंग विथ चेंज इन पोजीशन ऑफ द सन. The thing you have to remember is the principle of sundial. Apart from this, principle of sand clock. How much time is the sand is requiring to move from upper chamber to lower chamber is the principle of sand clock. Are you getting? So you have to remember these things. ये principle पूछा जा सकता है ऐसे question, ऐसे concept से. फिर दूसरा क्या कि largest sundial in Jaipur, you have to remember. Yes, of course India है ना, India से है, so you have to remember. Okay, so largest sundial, it is in Jaipur, and its accuracy is it is the most accurate in terms of sundial. Sundials में वो most accuracy के साथ time दिखाता है. It is accuracy of 2 seconds ना. It measure time accuracy of 2 seconds वाला भी उतना accuracy है ना. सोचो sundial होके it measures the time with accuracy of 2 seconds. Okay, apart from this there were many Maharaja Jai Singh है ना, Jai Singh 2 I guess है ना. So he was of Jaipur only, and he built many huge sundials, okay, in Jantar Mantar, in Delhi, Varanasi, Ujjain, that you have to remember. Okay, the stage. It is for your knowledge only, and if you are more and more aware of India, तो फिर क्या ही चाहिए है ना. Okay, so now if we start today's, not wasting much time. I guess I not wasted, but made you revise 6 minutes, around 5 minutes. Okay, so I gave you a brief of what we discussed in first video lecture. What you have to remember in that, okay, what are the concepts you have to keep in mind. Also, I have provided you the questions, okay, some filling the blanks and match the column regarding this. Okay, from match the column I remember that there is one blue box given in the textbook, regarding how differently the time, commonly used units of time, like we say that 60 seconds is equal to 1 minute, 60 minutes is equal to 1 hour. Okay, 24 hours is equal to 1 day, 365 days is equal to 1 year. Okay, so this we are aware. But what about if I talk about 10 years? Then it is 1 decade. 10 decades, then it is century. Okay, 100 years, that is century. And 10 centuries is nothing but 1 millennium. Okay, so that you have to remember. And regarding that, I have given you the match the column and various questions regarding that first video lecture. The link for the same is given in the description box of this video lecture. Okay, and you would be finding that link in the description of first video lecture also, wherein for what I am saying you that I have provided you the link for solving extra questions. Okay, you can find the link and you can solve the questions. Okay, I have uploaded, you can check the file, and I have uploaded the questions with answers. Okay, so it would be very easy for you, try these questions and check your progress. Okay, we moved on further today's video lecture, okay, which you are waiting for a long I guess 8 minutes. Okay, no problem. Let us start with the simple pendulum. Okay, so we basically are in the टॉपिक विच इज मेजरमेंट ऑफ टाइम कि भाई टाइम को हम कैसे मेजर करें. ओके, वी डिस्कस दैट अर्लियर व्हाट ह्यूमन यूज्ड टू मेजर टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, एंड वी ऑलरेडी नो द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट, है ना. ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशंस कि नहीं मतलब सनडायल है तो ठीक है दोपहर तक आप यूज कर सकते हो. फॉर अंटिल द सनसेट्स यू कैन रिलाई ऑन सनडायल. बट व्हाट इफ आफ्टर सनसेट? Okay, how would you measure the time after sunset? That was one limitation. In case of sand clock, you can use this for a short interval of time. For a particular time, you can use a sand clock, but not always. Whole day you cannot measure time, or you cannot rely on sand clock. Okay, what basically today the stopwatch is doing, there was a time sand clock was used in place of stopwatch. We can understand like this. And what in case if we only depend on the position of the sun? So again there would be drawback, like during if we talk about rainy seasons, when the you cannot see the position of the sun. Or okay, if you are able to see the sun also, you can make assumptions. Then what about night?
Okay, again you cannot completely rely on the position of the moon, क्योंकि moon का position जैसे sun का कैसा होता है east to west, but moon का ऐसा नहीं होता, moon की cycles अलग होती है, so you cannot rely on moon for time, है ना. Okay, so as we move further with time, people develop different techniques, and at what pace the technology is developing today, है ना. At a very very fast pace the technology is developing according to our needs. Okay, as our needs is increasing, the technology is hand by hand increasing. Okay, the development is increasing. Okay, so to measure time, then people use simple pendulum. Now what do we understand by simple pendulum? So simple pendulum is nothing but, have you observed some pendulum clock wherein there is, suppose this is the clock and here the pendulum is hanging and this is moving like this, ting ting, ting 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 ting, something like this. This is nothing but pendulum. Okay, so जो घड़ी के नीचे वो ऐसा ऐसा टिक 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 होता रहता है ना नीचे, कोई कोई घड़ी के नीचे, सारे घड़ी के नीचे नहीं. I was that's why I was specifying पेंडुलम क्लॉक्स, है ना. तो क्लॉक के नीचे अगर पेंडुलम हो या कुछ टेडी बेयर सा होता है या कुछ भी लटक रहा है नीचे, और वो लटकता है लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा 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 मूव होता है ना. सो दैट इज नथिंग बट पेंडुलम. ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ पेंडुलम वाज डन बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड गैलीलियो गैलीली. ओके, he was very famous scientist and he led to the discovery of simple pendulum. So Galileo Galilei was an Italian scientist who discovered simple pendulum. Okay. Now, on what principle the simple pendulum worked? Okay. So always completes, the simple pendulum completes one to and fro motion in exactly the same time. Now let us understand what is to and fro motion. Okay, so the pendulum is initially at its mean position. जब pendulum कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ सीधे से लटक रहा है मतलब, तो pendulum के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है स्ट्रिंग जिससे वो लटकता है, तो दिस इज द स्ट्रिंग, और जो मास है नीचे स्ट्रिंग के साथ लगा जो मास है, बॉल होता है, उसको हम बोलते हैं बॉब. उसको हम क्या बोलते हैं? बॉब. तो पेंडुलम के दो पार्ट्स हैं, एक है स्ट्रिंग और एक है बॉब. सो हियर this small mass which is bob and there is string. So these are the two components of pendulum. Clear? Now I am coming to this. First, this and these 2 points are related. If you are clear with the components, now let us talk about the movement. And the movement of this pendulum is referred as to and fro motion. To and fro मतलब क्या? Okay, दिस इज पेंडुलम. अभी कैसा है? सीधा खड़ा है. हिल रहा है? नहीं हिल रहा है. ठीक है, वो ऐसे ही खड़ा है. अगर मान लो आप यहां से इसको ऐसा धक्का देते, यू अप्लाइड सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन, पेंडुलम कहां मूव करेगा? इधर मूव करेगा. यस, यहां से वो मूव करके कुछ सर्टेन डायरेक्शन तक जाएगा. फिर वहां पे वो एक पॉज लेगा और फिर वो वापस जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे आएगा. लेकिन यहाँ पे भी अब भी वो रुकेगा नहीं. जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी अब भी वो रुकेगा नहीं. इट वुड बी कंटिन्यूइंग फर्दर. यहाँ पे फिर एक पॉज लेगा और फिर वापस आएगा, है ना. सो वो पेंडुलम को अगर आपने एक बार धक्का दिया तो ऐसा नहीं जिस साइड पे धक्का दिया वो सिर्फ उस तरफ जाए. सपोज आई एम पेंडुलम एंड आई गेट अ फोर्स अराउंड दिस. जैसे हम अगर सीधे से खड़े, कोई हमें धक्का देगा तो हम सिर्फ इतना सा ऐसा यहाँ थोड़ा सा घिरेंगे, लेकिन शिफ्ट किधर होंगे? इस तरफ, है ना. बट पेंडुलम शिफ्ट इधर भी होगा, वो वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा. समझ आ रहा है? मतलब वो बीच में था, उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा वो उधर जाएगा, टिंग, वो वापस आएगा, वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. So this is known as to and fro, है ना. आगे पीछे आगे पीछे, that is nothing but to and fro motion. Okay, ये to and fro motion एग्जैक्ट सेम टाइम में होता है. आप
दिस डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो भी उसे ये डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा। Okay, reaching to this, clarifying this, but are you understanding the term to and fro? To and fro motion, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आप लोगों ने रोटेशनल मोशन के बारे में सुना होगा। रोटेशनल मोशन यानी क्या? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, दैट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, है ना। अगर आप पार्क में जाते हो मस्त गार्डन में खेलने, है ना, अभी कोरोना की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, बट some day was there, you were going to garden, you were playing on the slides याद आई, है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्कन, जो भी स्लाइड बोलते हो ना, स्लाइड्स खाते थे। वाटर पार्क में भी स्लाइड्स होती थी, है ना। तो क्या होता था, पार्क में आप जाते हो, पीछे से सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर स्लाइड खाते हैं ना। जब वो तुम स्लाइड खाते हो वो तुम कौन सा मोशन करो, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। जब तुम गोल घूम रहे हो, रोटेशनल मोशन, है ना। सो ऐसे ही एक होता है पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो फिक्स्ड पीरियड्स में हो, फिक्स्ड टाइम पे हो, है ना। जैसे ये है, इसको मैंने धक्का दिया तो ये इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, फिर इधर 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 इधर, समझ रहे हो। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है ना। क्या इसने मैंने ऐसा फोर्स दिया तो ऐसा ऐसा घूमने लगा के नहीं, उसका एक फिक्स मोशन है जो फिक्स टाइम में ही होगा, फिक्स टाइम में हो रहा है, फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, पीरियोडिक मोशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। मान लो अगर मुझे पेंडुलम का लेंथ चेक करना है तो मैं कैसे करूंगी। सो वी हैव कंसीडर्ड दिस पेंडुलम। सो अगर मैं बोलूंगी बताओ इस पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, स्केल लोगे, यहाँ पे एक एंड रखोगे स्केल का, एंड यू वुड बी एक्सटेंडिंग टिल दिस, दिस इज द लेंथ, बट this is not actually the length. The length you have to measure is from the point where the pendulum is hanged, यहां से to the point at the center, ठीक है। ये जो बॉब है इसका सेंटर लेना है आपको, उस सेंटर तक ही लेंथ मेजर करनी है, इससे नीचे नहीं जाना। सो दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये पूरा you do not have to consider the length, only from the point where the pendulum is hanged up till the point that is half that of this small mass bob. बॉब का जो सेंटर होता है ना, वहां तक आपको मेजर करना है, that is the total length of the pendulum. So somebody asks you to measure the length of the pendulum, you have to go by this way. Now the question might arises in your mind कि क्यों ऐसा ही, क्यों ऐसा नहीं। So this questions would be clarified in your higher standards. Okay, right now you have to remember this only. Like SI system आया, SI system ने लेंथ का, ठीक है, लेंथ का SI system ने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही क्यों दिया, किलोमीटर क्यों नहीं दिया, सेंटीमीटर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मीटर वाज समथिंग, वो ना तो सबसे वो ना तो ज्यादा छोटा है ना तो किलोमीटर जितना बड़ा है, इट इज मीडियम एवरेज, तो हमने वो यूज किया। सो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिसाइड किए जाते हैं, एंड द डिटेल्स रिगार्डिंग विच यू वुड बी स्टडीइंग इन हायर स्टैंडर्ड्स। So the thing you have to remember, if I ask you what is the length of the pendulum, so if suppose this is your pendulum, okay, so you would be starting, you would be placing one point of your scale at here, from the point where the pendulum is hanged up till the half length of the bob till here. Okay, this is the total length of the pendulum. Getting? Now if we talk about one complete to and fro movement, I said that this is to and fro movement, यानी क्या होता है कि पेंडुलम पहले बीच में, अगर मैंने इस तरफ धक्का दिया वो इधर जाएगा, फिर वो वापस इधर आएगा, वो इधर भी जाएगा वापस इधर आएगा। जब ये यहाँ पे आया दैट इज वन टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी पहले ये इधर गया तो दिस इज वन मूवमेंट, ये फिर यहां से इधर आया सेकेंड, यहां से फिर इधर भी जा रहा है थर्ड, फिर ये वापस यहाँ पे आया
4, ये जो फोर्थ पे आके अपने मीन पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, यानी दूर से दूर, ज्यादा दूर तक कितना जा सकता है, तो बस उतना, फिर वापिस आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर ऑपोजिट साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इधर से इधर गया, वापस इधर आया और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, जो चौथी बार आएगा वहां पे जैसे ही मीन पोजीशन पे आया, दैट मीन्स वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। यानी यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए? 1। ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ पे आया, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, इधर गया, बीच में आया, यहां गया, बीच में आया, बस जैसे ही चौथी वाली मूवमेंट हुई, ठीक है, और ओरिजिनल पोजीशन पे आया, दैट इंडिकेट्स वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट, वन टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कंप्लीटेड। क्लियर? सो दिस इज द थिंग, है ना, आई वाज शोइंग कि यहाँ पे ये 0, ठीक है। अब मानो फोर्स मैंने यहां से नहीं, यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, तो पहले कहां जाएगा? यहाँ पे, फिर वापस से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा फिर से, और फिर वापस से यहाँ पे आएगा, यानी 1 2 3 और वापस आया 4। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टोटल 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, और ऐसा बोला गया है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर पेंडुलम का लेंथ लेते हो, तो तुम मुझे बताओ, क्या 25 यहां से यहां तक होगा कि 25 यहां से यहां तक होगा? यानी पूरा होगा कि मैं आधा लूं? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। कौन सा मैं मेथड लूंगी टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंडुलम? सोचिए जल्दी बताइए। I guess you are pointing towards first method. If you are pointing towards first method, you are absolutely correct, and the concept of yours regarding length of pendulum is clear. And if you have chosen to, my बेटा ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, यानी क्या कि जहां से वो लटक रहा है, the point from which the pendulum is hanged, ठीक है, until the half the way of bob. बॉब जो है, सर्कल है, इसका आधा ही लेंथ इंक्लूड करना है, और बाकी का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और आधा बॉब का लेंथ, वो हो गया टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अगर इतना लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है, तो टाइम पीरियड होगा 1 सेकेंड। तुम फोर्स भले ही जितना जोर से लगा लो ना, टाइम उसको 1 सेकेंड ही लगेगा। ठीक है, जोर से धक्का दोगे तो ऐसा नहीं कि वो जल्दी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो द टाइम पीरियड does not depends on the force you applied, but it depends on the length of the string. लेंथ चेंज करोगे, लेंथ पेंडुलम का चेंज करोगे, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स। फोर्स ज्यादा लगाओ कम लगाओ, ठीक है, एक ऑसिलेशन खत्म करने में अगर उसको 1 सेकेंड लग रहा है, तो तुम ज्यादा फोर्स लगाओ कि कम फोर्स लगाओ, उसको टाइम पीरियड 1 सेकेंड ही लगने वाला है। आर यू गेटिंग? ओके, मूविंग डाउन टू नेक्स्ट, पेंडुलम क्लॉक्स। तो अब जब पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आ गया, गैलीलियो गैलीली ने पेंडुलम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे पेंडुलम क्लॉक्स है। पेंडुलम कैसा है? अगर लेंथ फिक्स कर दी तो इंटरवल्स पीरियोडिक मोशन करेगा। इस पीरियोडिक मोशन के बेसिस पे क्लॉक्स बनाए गए, ठीक है, और ये क्लॉक्स में हमें 3 हैंड्स दिखते हैं,
आवर हैंड, क्लॉक के अंदर आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकेंड हैंड होता है. सो दिस क्लॉक वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम. दूसरे क्लॉक आए जैसे कि wrist वॉचेस, ये तो पेंडुलम क्लॉक्स हो गए. उस जमाने में या अभी भी जो सिंपल सी wrist वॉच आती है, वो सिंपल सी wrist वॉच के अंदर बैलेंस व्हील डाला जाता था. उसमें हम पेंडुलम तो नहीं डाल सकते, बट वी इंसर्टेड बैलेंस व्हील, नॉट वी बट यू नो द पीपल एट दोस टाइम इंट्रोड्यूस्ड बैलेंस व्हील. इसका भी सेम प्रिंसिपल होता था पेंडुलम. जैसे पेंडुलम ऐसे 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 करता है, तो उसके ऐसे ऐसे करने से मिनट आवर हैंड हिलता था. यहाँ पे wrist वॉचेस, जो नॉर्मल wrist वॉचेस आती है ना, जिसमें देखो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, इफ यू आर एबल टू यू नो सी, सो दिस ये जो वॉच है, ये वॉच में भी क्या है, आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है, सिंपल wrist वॉच. तो इसमें भी दिस वुड ऑल्सो बी वर्किंग ऑन व्हाट, दिस वुड बी वर्किंग ऑन बैलेंस व्हील. यानी बैलेंस व्हील जो है वो भी कुछ ऐसा है जो पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन करके आवर, मिनट और सेकेंड हैंड्स को हिलाता है और हमें सही टाइम बताता है. ओके, इन केस इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक wrist वॉचेस, अब क्या है कि जैसे ये जो wrist वॉच है, दिस माइट बी एन इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये बैलेंस व्हील का जमाना गया, अब जो आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक. अब तुम ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक डजंट मीन्स कि यहाँ पे आपको डिजिट्स दिखाई देंगे. अगर यहाँ पे आपको डिजिट दिखाई देते हैं, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है. जैसे ये हम लिखते हैं ना 12, 3, 6, 9, ऐसा वाला घर ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है. वो ऐसा कुछ होता है ना 12, 30, ऐसा वाला कुछ दिखाई दे, दैट इज द डिजिटल वॉच. उसको इलेक्ट्रॉनिक wrist वॉचेस नहीं बोले. इलेक्ट्रॉनिक wrist वॉचेस में क्या होता था, अंदर कुछ इलेक्ट्रिकली किया. अब इन wrist वॉचेस में यहाँ पे पेंडुलम प्रिंसिपल नहीं वर्क करता. यहाँ पे आते हैं क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज. Quartz is, a substance, whose crystals are used in this wrist watches. Quartz की watches सुनी है ना? तो quartz की watches क्यों महंगी आती? क्योंकि उसमें सिंपल पेंडुलम का प्रिंसिपल नहीं चलता. उसमें you would be using crystals. अब ये जो crystals है वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं. इतना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, उनके फास्ट वाइब्रेशंस के बेसिस पे टाइम बताया जाता है. उनके फास्ट वाइब्रेशंस के बेसिस पे आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड मूवमेंट शो करेंगे और उससे हमें टाइम पता चलेगा. तो क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज इज इलेक्ट्रॉनिक wrist वॉचेस है. क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज क्या है, वो हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं. क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशंस होती है वो ये इसका प्रिंसिपल है. ये इसका प्रिंसिपल है. क्या प्रिंसिपल है कि वाइब्रेशंस ऑफ दीज क्रिस्टल्स आर वेरी फास्ट एंड एट अ प्रिसाइज रेट. ठीक है, बहुत सटीकता से आपको टाइम बताएगा, एग्जैक्ट टाइम बताने की कोशिश करेगा. देयरफॉर क्वार्ट्ज का जो क्लॉक होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक wrist वॉचेस या कोई भी जो क्लॉक है जो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स यूज कर रहा है, ओके, फॉर मेजरिंग द टाइम, दैट इज मोर एक्यूरेट, है ना, वो ज्यादा सही टाइम बताएगा एज कंपैरेटिवली टू पेंडुलम क्लॉक. क्लियर? इसलिए क्वार्ट्ज क्लॉक महंगी आती है, पेंडुलम क्लॉक सस्ती आती है. ठीक है, पेंडुलम क्लॉक क्या है? दोज विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम, टू एंड फ्रो मूवमेंट. Quartz clock or the electronic wrist watches are the ones which are working on the basis of vibrations of crystals. In case if I talk about another, that clocks are used to measure short intervals of time accurately. मतलब छोटा छोटा टाइम मेजर करना है, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स. तो वो ऐसी सिंपल वॉच में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए क्या आया? उसके लिए आया स्टॉप वॉचेस. So stopwatches, are basically used to measure short intervals of time accurately. Okay. Now, if we talk about digital watches, as I said, digital watches are totally different from electronic wrist watches. Electronic wrist watches means that would be using crystal of quartz, but digital watches are something that would be, representing digits on the clock. Rather than the same 12, 3, 6, 9 वाला, वो नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा डिजिटल wrist watch. Difference is that. In case if I talk about atomic clocks are further more accurate than quartz clock. क्यों?
तो एटॉमिक, जैसे हम क्वार्ट्ज क्लॉक में क्या बोलते हैं कि क्वार्ट्ज एक सब्सटेंस है जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, तो उस क्रिस्टल्स का वाइब्रेशंस के बेसिस पे वो क्लॉक हमें टाइम बताता है। एटॉमिक क्लॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स। सो जो एटम्स का वाइब्रेशन, तो कितना सही बताता होगा टाइम, है ना। तो एक तुम टेक्स्ट बुक में देखो, एक कॉलम दिया जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में बताया। तो जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स वाइब्रेट करके टाइम बताते हैं, यहाँ पे एटम्स वाइब्रेट करके टाइम बताते हैं। तो मेजर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स। ओके, सो द थिंग इज, अगर मैं एटॉमिक क्लॉक की बात करती हूँ, तो इट इज मोर एक्यूरेट एंड दे आर द मोस्ट एक्यूरेट, यू कैन से। And they, in that box of information, the last, it asks you to identify in which institute of India this atomic clocks are used. Okay, so the answer to it is ISRO. Okay, so this ISRO, you have been very well aware. If not, you find the full form of this. Okay, Indian Space Research Organization. Okay, so that you check it out about ISRO. You might have heard about many news regarding this, and you can see the movie, the Bollywood movie, Mission Mangal, if I'm not wrong, Mission Mangal, है ना. So wherein there was you can say a plot of ISRO only, है ना. So ISRO में एटॉमिक क्लॉक्स यूज किए जाते हैं बिकॉज देयर द टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच प्रीशियस. द क्वेश्चन, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ISRO. And I hope you are clear about atomic clocks, digital watches, stopwatches, electronic wrist watches. Okay, then if we talk about common wrist watches, that is balance wheel. Okay, that works on balance wheel, and balance wheel is nothing that works on simple pendulum. So pendulum clock. These are the different clocks and their principles. So now the time wala, time wala aspect is finished. The time wala aspect of this chapter is finished. Now we are moving down to motion. And to understand motion, to calculate motion, okay, to understand different types of motion, we can refer motion with one of the physical quantity, that is speed. So let us start understanding what is speed. So speed is something that is basic, the distance covered by a moving object. Okay, it is the distance covered by a moving object. Obviously speed can be measured of moving object only. Distance covered by moving object in unit time. In unit means 1. Unit means 1. तो अब ये 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, ठीक है, 1 मिली सेकेंड हो सकता है, कोई भी यूनिट टाइम का, लेकिन वो 1 यूनिट मतलब 1. मैथ्स में पढ़ते हैं ना यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, है ना. तो यूनिट प्लेस में क्या आता था, 1 डिजिट आता था. जैसे 1 मिली सेकेंड, 1 आवर, 1 सेकेंड. लेकिन तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज known as speed. Let us talk about formula. So speed is distance divided by time. So suppose distance तुमने कुछ किलोमीटर्स में कवर किया और टाइम तुमने लिया आर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर. मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या था, सेकेंड. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ डिस्टेंस कैन बी मीटर, है ना. लेंथ मेजर करने के लिए मीटर था, डिस्टेंस भी तो लेंथ हुआ, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर लेंगे. वो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर. ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है. सेकेंड से बड़ा हो जाएगा आर और मीटर से बड़ा हो जाएगा किलोमीटर. सो अगर मैं स्पीड का यूनिट लेती हूँ तो वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, टाइम का यूनिट ले लिया आर, ठीक है. सो किलोमीटर पर आर, इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आर, यानी हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले वो होता है स्पीड. अब इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर टाइम t एट स्पीड s, इट कवर्स अ डिस्टेंस d. तो d कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. अब हमें स्पीड दी है,
हमें टाइम दिया है, क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम डिवीजन में मैं जब इसको इधर लेके आऊंगी तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो तुम ये वाली फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो. दूसरा में क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस d एट अ गिवन स्पीड s, द टाइम इट टेक्स इज, तो मान लो टाइम अभी हमें कैलकुलेट करना है. हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. मैं टाइम को इधर ले लूं क्या? जब ये टाइम इधर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हमें तो टाइम चाहिए, तो क्या मैं स्पीड को इधर ले लूं? स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जब इधर जाएगा तो डिवीजन. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अगर तुम्हें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद है तो तुम ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो नो नीड टू cram this formula. Only you have to remember is speed is equal to distance upon time. Clear? यहाँ तक के क्लियर है? अब देखो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? उसके बेसिस पे वी आर सॉल्विंग वन एग्जाम्पल. ठीक है, तो पता चले ना कि हम कैसे फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर. यानी हमें डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर. अ बस टेक्स 5 hours टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. हमें टाइम दिया कि भाई दिल्ली से चंडीगढ़, फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ द डिस्टेंस इज 250 kilometer and the time taken by the bus to travel from Delhi to Chandigarh is 5 hours. 5 hours. At what speed does it travels? हमें डिस्टेंस दिया है, that is distance is equal to 250 kilometer. हमें टाइम दिया है, that is 5 hours, and we have been asked to calculate speed. So speed is what? We have just learned. Speed is distance covered in unit time. So distance divided by time. Distance divided by time. चलो, तो डिस्टेंस क्या है? 250 किलोमीटर और टाइम क्या दिया है? 5 hours. So 5 ones are 5 5s are 25 और ये 0 यानी 50. ये तो क्या आ गया? स्पीड. यूनिट क्या डालेंगे? सिर्फ 50 लिख के थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना? स्पीड की यूनिट होती है, मैंने यहाँ कैलकुलेट कराया था, वापस देखो. डिस्टेंस किसमें होता है? किलोमीटर. डिवाइड बाय आर, किलोमीटर डिवाइड बाय आर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखोगे. दिस इज द यूनिट. मान लो कि तुम्हें यूनिट जो है, सपोज वी टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हें 250 मीटर दिया होता और 5 सेकेंड्स दिए होते. टाइम 5 सेकेंड्स दिया है और डिस्टेंस 250 मीटर दिया. तब जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? 250 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स. सो ये क्या हो जाएगा? 250 बाय 5 50 है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. ये हो गई यूनिट. ओके, सो द यूनिट इन विच द डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन, उसके बेसिस पे हम स्पीड का यूनिट देंगे. उसके बेसिस पे हम स्पीड का यूनिट देंगे. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सो इन दिस क्वेश्चन द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन takes 6 hours to travel from न्यू दिल्ली to लखनऊ. ठीक है, तो न्यू दिल्ली से लखनऊ तक शताब्दी एक्सप्रेस को 5 hours लगते हैं. आई मीन सॉरी 6 hours and 6 hours at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर. है ना, शताब्दी एक्सप्रेस है तो फास्ट तो भागेगी.
है ना। तो स्पीड क्या दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, 6 घंटे में इतनी स्पीड से न्यू दिल्ली से लखनऊ जाती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस कितना डिस्टेंस कवर करती है, या न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें स्पीड दिया है। क्या है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें टाइम दिया है, टाइम 6 आवर्स। हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। हमें फॉर्मूला पता है, हमें एक ही फॉर्मूला याद कर रखनी है, वो क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है वही तो मैम कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस टेक दिस डिस्टेंस। टाइम क्या दिया है 6 आवर्स। ओके, स्पीड क्या दी है 80 किलोमीटर पर आवर। We can calculate distance by taking the time towards this side. So that implies distance is equal to, ये डिवीजन में यहाँ आएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी 80 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखेंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 6 आवर्स। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो देखो आर से आर कैंसल हो जाएगा, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो कौन से यूनिट में मिलेगा किलोमीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, बराबर, समझ आया। और 80 मल्टीप्लाई बाय 6 इज नथिंग बट 480 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ इज 480 किलोमीटर। यूनिट समझ आया कैसे देखना है। तो हमें अगर ऐसा जरूरी नहीं है हर बार स्पीड ही कैलकुलेट करने के लिए दे, वो तुम्हें स्पीड देंगे, टाइम देंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या तो वो तुम्हें डिस्टेंस देंगे, स्पीड देंगे, टाइम कैलकुलेट करना है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें फॉर्मूला पता है, 2 चीजें दी है, एक चीज कैसे निकालनी है वो तुम्हें पता है। इसके अलावा उन्होंने कंसेप्ट दिया है दैट ऑफ स्पीडोमीटर। इफ यू हैव ऑब्जर्व इन योर व्हीकल देयर आर 2 मीटर्स आगे, अगर 2 व्हीलर में है तो आगे, 4 व्हीलर में भी आगे सामने होता है, जहां पे स्पीड मेजर करते हैं। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज स्पीडोमीटर। In case if I talk about odometer, odometer ऐसा है वो डिवाइस which is used to measure distance। तो देखना अभी आप नेक्स्ट टाइम जब भी कार में या कोई भी 2 व्हीलर लें, कोई भी व्हीकल लें, तो उसमें प्लीज डू ऑब्जर्व दिस स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है। ऐसे ऐसा होता है ना 0, 40, 20, I mean 20, 40, 60 ऐसा वाला, है ना। तो उसमें बताता है कि कितना स्पीड है, वो स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। और उसमें बीच में मतलब ऐसा कुछ होता है और बीच में ऐसा कुछ डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में कुछ डिजिट्स लिख के आते हैं। दैट डिजिट्स आर शोइंग हाउ मेनी किलोमीटर्स दैट पर्टिकुलर व्हीकल हैज ट्रैवल्ड। ओके, so this was basic information regarding this. In the next class we would be studying about distance time graph. Okay, and basically we would be studying about different types of motion, that is uniform and non-uniform motion. ओके, नाउ सपोज इफ आई आस्क यू, है ना, कि मान लो तुम्हें ऐसा मतलब है ना ओडोमीटर दिया, तुम्हारे व्हीकल में स्पीडोमीटर नहीं है, तुम्हारे व्हीकल में सिर्फ ओडोमीटर है जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, तुम्हारे पास एक रिस्ट वॉच भी है, तो क्या तुम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? तुम्हें बोला तुम्हें घर से मार्केट जाना है, you are having wristwatch and your vehicle is only containing odometer, it is not having speedometer, will you be able to calculate speed? आज तो मैम स्पीडोमीटर ही नहीं दिया, स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? You can if you are knowing the distance covered by you from home to market, distance पता है, तुम रिस्ट वॉच से टाइम देख सकते हो कि भाई घर से मार्केट मुझे जाने में 1 घंटा लग रहा है और घर से मार्केट 5 किलोमीटर है। So your speed is distance divided by time. So if you are only having odometer, then too also you can calculate speed. But speedometer क्या है कि कभी तुम फास्ट चलाते हो, कभी तुम स्लो चलाते हो, तो एग्जैक्ट इंस्टेंट पे एग्जैक्ट स्पीड देना, that is the work of speedometer. But actually you can find speed
by only odometer, and if you are having appropriate equipment like watch or anything to measure the time. Okay, so with this we end this lecture, and you please do check the description for solving extra questions.